Hello, good morning, everyone. I hope I'm audible to everyone. Yes, good morning. Fine. So let's start with today's topic. Just a quick revision of the previous session which we had done. So we did Speed Maths 1, okay, wherein we did the last digits wala type of questions, wherein we saw how to solve questions which end with last digit, jiska last digit different hai. How do you identify that very quickly? How do you multiply your numbers? ठीक है, वी सॉ वेरियस ट्रिक्स. अगर यूनिट्स डिजिट सेम है तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, टेंस डिजिट सेम है तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. इफ योर नंबर्स आर क्लोज टू 100, मे बी more than 100, less than 100, how do we multiply? And looking at the options, how can we crack the options quickly within 10 to 20 seconds? ठीक है, so we saw all those type of category of questions, and today we are going to deal with this is the second part of speed maths, wherein we will see how to calculate squares, how to calculate square roots, likewise how to calculate cubes and cube roots. Because again, बहुत सारे questions ऐसे आते हैं quant में, as far as all your exams are concerned, CET, CMAT, SRCC, XGMT, जहाँ पे शायद आपको squares या cubes calculate करना पड़े, या फिर square root या cube root भी calculate करना पड़ सकता है. ठीक है, so there are certain tricks and techniques by which you can be very fast and figure out your options quickly, figure out your answer quickly. ठीक है, so starting with the topic, first thing which I request all of you guys is, आप लोगों को 1 to 30 सारे squares आने ही चाहिए. Please, it is a must. 1 to 30 you should know all the squares. Just a second. Yes. So the thing here is, you should know all the squares from 1 to 30. So whenever you are solving, make sure इतना ये chunk तो आपको आना ही चाहिए. So probably you can take a screenshot of this, or you can write it down so that you know all the squares from 1 to 30. Because if you are doing any sort of square trick or any sort of cube trick, squares and cubes of certain numbers are a must कि इतना तो आना ही चाहिए. ठीक है? Now, okay, let's say if you have to calculate any square from 41 to 60, what are you going to do? ठीक है, आप ये समझ लो कि इसमें दो चीजें होती है. एक होता है बेस, we call it the base. You can give it any name, doesn't matter. One is called as the comparison factor. ठीक है, ये सारे numbers के लिए ना 41 to 60, my comparison factor is going to be 50. मतलब जो भी number का आप square बोलोगे, I'm going to compare it with 50. And for all these numbers, my base is 25. ठीक है, for all these numbers, my base is 25. What does that mean? I'll help you out. देखो, suppose मैंने तुम्हें पूछा, what is, let's say, 48 square? I'm asking you, what is 48 square? You are going to compare the number with 50. ठीक है, so 48 is lesser than 50. कितना less है? 48 is 2 less than 50. Now you will subtract 2 because it is 2 less than 50. किससे सब्ट्रैक्ट करोगे? आपके बेस से सब्ट्रैक्ट करोगे. तो यू विल सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 25, which is nothing but 23. So these are the first two digits of 48 square. ठीक है, दो और डिजिट बच गए. There are two more digits. ठीक है, my point is, दोनों में डिफरेंस कितना था? दोनों में डिफरेंस था 2 का. उसका स्क्वायर ले लो. ठीक है, सो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4. But you have to fill two spaces, दो blanks है. So you will write it as 04. ठीक है, so 04 becomes your answer. 2304, that is 48 square. You can check. ठीक है, similarly, let's take one more example. Say if I ask you what is 42 square, कुछ example screen पे mentioned है, you can check that also. ठीक है, 42 square you're going to compare it with 50. So 42 is less than 50. कितना less है? 8 less है. So you will subtract 8 from 25. So 25 minus 8 कितना हो जाएगा? 25 minus 8 is going to be 17. ठीक है, फिर डिफरेंस कितना था दोनों में? डिफरेंस था 8 का. 8 का स्क्वायर ले लो. 8 का स्क्वायर इज 64. So your answer is 1764. Yeah? Yes, Houston, correct. Perfect. I hope you understood this. ठीक है, let's do a few more examples.
देखो, 1 सेक, ठीक है, एक एग्जांपल दिया है, जैसे 58 का एग्जांपल दिया, कैन चेक दैट आउट आल्सो। अच्छा, अभी ये जो दोनों ना हम नंबर्स हमने चेक किए, बोथ द नंबर्स व्हिच वी चेक, दे वर स्मॉलर देन 50, राइट? व्हाट इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 50? सो फॉर एग्जांपल मैं एक पहले नंबर बता देती हूँ, 52 स्क्वायर, इट इज ग्रेटर देन 50, 52 इज ग्रेटर देन 50। कितना ग्रेटर है? 2 ग्रेटर है। So it is 2 greater, so instead of subtracting 2, you will add 2. You will add 2 to what? You will add 2 to your base. So 25 plus 2 is 27. 2 spaces remaining. 2 का square होता है 4. You will write it as 04. So your answer becomes 2704. ठीक है? Yes, Maitri, perfect. समझ में आ गया ये? Okay, let's take one more example. If you can see, one example is given on the screen already. 58 square. 58 is 8 more. So you will add 8 to 25, which is your base. So 25 plus 8 will give you 33. Difference 8 ka tha, 8 ka square is 64. That is how you're going to solve it. So if your number is smaller than 50, you subtract. If your number is greater than 50, you add. That is the only difference. But किस में subtract और किस में add करोगे? यहाँ पे 25 में subtract करोगे और यहाँ पे 25 में add करोगे. So keep in mind, 50 में add subtract नहीं करना है, 25 में add subtract करना है. So that is also one mistake which students do. ठीक है? Let's solve a few questions. Yes. So these are all the squares from 41 to 60. Let's quickly figure out all the squares from 41 to 60. कैसे करोगे? Again, 41 कितना लेस है 50 से? 41 9 लेस है 50 से. तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे 25 minus 9. What is 25 minus 9? 25 minus 9 is 16. 9 का गैप था. 9 का स्क्वायर is 81. Yes, correct, Maitri. So your answer becomes 1681. ठीक है? Similarly, we just saw 42. 42 is 8 less. 25 minus 8 is 17. 8 का square was 64. Can you try 43? 43 कितना लेस है? 43 7 लेस है. So क्या करोगे? 25 minus 7 is going to be 18. चेक करो, ये 1 1 से बढ़ेगा. 16, 17, 18, 19, 20 वो वैसे बढ़ता रहेगा. 7 का गैप है. 7 का स्क्वायर इज 69. Sorry, 7 का स्क्वायर इज 49. Then 44. 44 is 6 less than 50. 25 minus 6 करो, ये हो जाएगा 19. 6 का स्क्वायर इज 36. ठीक है? 45 का स्क्वायर 16, 17, 18, 19 हो रहा है तो क्लियरली ये 20 हो जाएगा. 25 minus 5 is 20. 5 का स्क्वायर is 25. So just try a few questions. Okay. Can you tell me what is the answer for 46? Okay, Houston 2116. Okay. So यहाँ पे क्या हो जाएगा? 46 is 4 less 25 minus 4 is 21. 4 का square is 16. 47, this will become 22. 3 less था, 3 का square हो जाएगा 09. Yes. 48 के लिए यहाँ पे आ जाएगा 23. 2 का square is 04. ठीक है? 49 क्या हो जाएगा? 24. 1 लेस है, 1 का स्क्वायर इज 01. सो 2401. ब्यूटीफुल. 50 का स्क्वायर यू शुड नो. 50 का स्क्वायर इज 2500. 5 का स्क्वायर इज 25. तो 50 का स्क्वायर इज 2500. नाउ 51 के लिए क्या करोगे? 51 विल बी, इट इज 1 मोर. सो 25 प्लस 1 हो जाएगा 26. 1 ग्रेटर है, 1 का स्क्वायर इज 01. करेक्ट. दिस विल बिकम 27. 2 का स्क्वायर इज 04. This will become 28. आपको समझ में आ रहा है पैटर्न? ये 1 1 1 से बढ़ता जा रहा है. 3 मोर है तो 3 का स्क्वायर will become 09. 54 क्या हो जाएगा? 29. Yes. 4 का स्क्वायर is 16. ठीक है? 55 is 5 more, so 30. 5 का स्क्वायर is 25. 56 will be 31. Okay, perfect, Smriti. 31, 36. 57 will become 32. 7 का square is 49. 58 will be 33. 8 का square is 64. 59 is 34. 9 का square is 81. 60 I'm sure you can do. ठीक है? 60 का square is
3600. 6 का स्क्वायर इज 36, so this is 3600. ठीक है. So these are very simple to identify and understand कि squares क्या होगा. छोटा है माइनस करो, बड़ा है प्लस करो, जो भी लास्ट डिजिट है उसका स्क्वायर कर लो, जो भी गैप है उसका स्क्वायर कर लो, खत्म. So this was within the range of 41 to 60. ठीक है. Now what if you say your number is less than 40 or your number is greater than 60? उस केस में क्या करोगे? उस केस में भी कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है. अंडरस्टैंड, द सेम कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड हियर आल्सो, बट द पैटर्न चेंजेस स्लाइटली. हाउ डज इट चेंज? देखो यहाँ पे कैरी आता है. व्हाई? 38 स्क्वायर है. 38 इज लेस देन 50. कंपैरिजन फैक्टर इज 50. कितना लेस है? 12 लेस है. सो you will subtract 12 from your base, which is 25. 25 minus 12 is 13. 2 spaces remaining. Understand? 2 ही space remaining होता है because it is a 4-digit number. अब दोनों में गैप कितना है? दोनों को में गैप है 12 का. What is 12 square? 12 square is 144. Right? It's a 3-digit number. तो अब क्या करोगे? 1 carry हो जाएगा. This is 44. So you will add this. So your answer will be 1444. ठीक है. तो जो भी गैप आएगा वो ऐड हो जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. 27. सी 27 का स्क्वायर आपको स्टैंडर्ड आना ही चाहिए. सपोज नहीं भी आता है तो क्या करोगे? 27 यू विल कंपेयर इट विद 50. इट इज लेसर देन 50. कितना लेस है? 50 से 23 लेस है. सो यू विल सबट्रैक्ट 23 फ्रॉम 25. सो दैट विल बिकम 2 स्पेसेस रिमेनिंग. ठीक है. 2 ही स्पेस बचेगा, हमेशा याद रखना. डिफरेंस था 23 का. 23 का स्क्वायर क्या होता है? यू शुड नो 23 का स्क्वायर. 23 का स्क्वायर होता है 529. सो 5 विल कम हियर, 29 इधर आ जाएगा. सो इफ यू एड 5 plus 2 is 7, 29. दैट बिकम्स योर आंसर. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन. एनी डाउट्स? क्लियर? ओके. चलो अभी देखो नेक्स्ट नंबर जो है 66 है. 66 क्या है? वो ग्रेटर देन 50 है. तो आई जस्ट राइट इट हियर. 66 स्क्वायर कैसे करोगे? 66 इज ग्रेटर देन 50. कितना ग्रेटर है? इट इज 16 ग्रेटर. सो यू विल एड 16 to 25 because 16 ग्रेटर है. सो 25 plus 16 is 41. 2 spaces remaining. ठीक है. गैप था 16 का. 16 स्क्वायर क्या होता है? 16 स्क्वायर होता है 256. तो 2 कैरी हो जाएगा, 56 आ जाएगा. सो योर आंसर विल बी 4356. ठीक है. इज दिस क्लियर? 4356. यस. बढ़िया. नाउ ऑल ऑफ यू ट्राई 72 स्क्वायर एंड टेल मी द आंसर. चलो ट्राई करो खुद से 72 स्क्वायर. बताओ क्या आएगा आंसर. फाइव वन एट फोर. ओके. ओके. Yes, correct. Beautiful. The answer is 5184. If anybody has a doubt, just check. 72 is 22 more. तो आप क्या करोगे? आप ऐड करोगे 22 to 25. This will become 47. 2 spaces remaining. 22 का स्क्वायर is 484. 4 कैरी हो जाएगा 84. ठीक है. So this will become 5184. ठीक है. That's your answer. Right? Perfect. Now मूविंग ऑन. ठीक है. ये हमने क्या किया? ये हमने यहाँ पे जस्ट अ सेकंड, हमने 26 to 40 भी देखा और हमने 61 to 75 तक ये टेक्निक अप्लाई होगी. ठीक है. जस्ट गिव मी अ सेकंड. नाउ व्हाट इफ, देखो व्हाट इफ योर नंबर्स आर बियॉन्ड 75. मतलब अगर आपने बोला कि लेट्स से 76 का क्या आएगा, 78 का क्या आएगा, 82 का क्या आएगा, 89 का क्या आएगा, यू कैन अप्लाई द सेम टेक्निक, नो प्रॉब्लम. बट द थिंग इज यू आर कंपेयरिंग इट विद 50. आपका गैप जो है ना 50 के रिस्पेक्ट में बहुत बढ़ता जा रहा है. तो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम बिकॉज वो जो गैप है उसका स्क्वायर हमें जनरली आता नहीं है. तो व्हाट डू वी चेंज सर्टेन नंबर्स. ठीक है ना. यहाँ पे क्या करोगे? लेट्स से योर नंबर्स आर फ्रॉम 91 to 110. तो 91 to 110 में आप क्या करोगे? देखो
वहां पे बेस और कंपैरिजन फैक्टर अलग था, यहाँ पे अलग हो जाएगा. देयर द कंपैरिजन फैक्टर वाज 50, हियर द कंपैरिजन फैक्टर इज 100. मतलब जो भी नंबर्स आएंगे आप उसको 100 से कंपेयर करोगे. ठीक है, वहां पे बेस था 25. ठीक है, यहाँ पे बेस इज द नंबर इटसेल्फ. चेक दिस आउट. ओके, द बेस इज नंबर इटसेल्फ, कंपैरिजन फैक्टर इज 100. नाउ इफ यू आस्क इसको अप्लाई कैसे करेंगे. ठीक है, देखो, सपोज इफ आई आस्क यू 96 स्क्वायर. ठीक है, so 96 is going to be compared with 100, so 96 is less than 100. ठीक है, 96 कितना लेस है 100 है, से 96 is 4 less than 100. तो you will subtract 4 because वो 4 लेस है. किससे 4 सब्ट्रैक्ट करोगे? अपने बेस से. पिछले केस में बेस क्या था? पिछले केस में बेस वाज 25. हियर द बेस इज द नंबर इटसेल्फ, मतलब आप 96 से ही सब्ट्रैक्ट करोगे. ठीक है, so what will this give you? This will give you 96 minus 4 is 92. These are my first two digits. There are two more digits remaining. दोनों में डिफरेंस कितना था? दोनों में डिफरेंस था 4 का. What is 4 square? 4 square is 16. So your answer becomes 9216. समझ में आया? It's the same technique. Just your base and comparison factor will change. ठीक है, look at this example. ये जो example हमें दिया गया है, look at the example on the screen. 94 स्क्वायर. तो 94 स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करोगे? 94 कितना लेस है 100 से? 94 6 लेस है 100 से. तो हमने क्या किया? हमने 94 माइनस 6 किया. तो 94 माइनस 6 इज गोइंग टू गिव मी 88. एंड दोनों में डिफरेंस था 6 का. 6 का स्क्वायर हो गया 36. सो दैट बिकम्स योर आंसर. ठीक है, ना व्हाट इफ योर नंबर इज ग्रेटर देन 100. ठीक है, I'll just erase this. हाँ, what if your number is greater than 100? Suppose मैंने आपको पूछा what is 103 square? 103 again will be compared with 100. हाँ, it is how much greater? It is 3 greater. So you will add 3 to your base. Base क्या है? मैंने आपको बताया base is the number itself. तो वो 103 ही हो जाएगा. So your value will be 103 plus 3 which is 109. Sorry, 106. 103 plus 3 106. अच्छा, एक चीज याद रखना. For all the numbers greater than 100, your squares will be a 5-digit number. Why 5 digit? देखो, 100 square. 100 square कितना होता है? 100 square होता है 10,000. It's a 5-digit number. It's the smallest 5-digit number. तो इसके बाद सारे numbers जो भी आएंगे, they will all be 5-digit squares. Just remember this. तो 100 के ऊपर जो भी squares होंगे वो 5-digit होंगे. तो यहाँ पे क्या करोगे? 103 is 3 more. You will add 3 to 103 which is 106. 3 का गैप था. 3 का स्क्वायर होता है 9, but you will write it as 09 because 5 digits. ठीक है, now similarly let's check this 109 का example. 109 is 9 greater, so you will add 9 to your number which is 109. So 109 plus 9 मेरे को मिलेगा 118. डिफरेंस कितना था? डिफरेंस था 9 का. 9 का स्क्वायर क्या होता है? 9 का स्क्वायर होता है 81. सो माय आंसर बिकम्स 11881. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, लेट्स सॉल्व ऑल द स्क्वायर्स from 91 to 110 and let's see if you can figure it out. I'll help you out with a few questions and then you can try the few questions. देखो मैं क्या बोल रही हूँ. 91. 91 किससे कंपेयर करोगे? 91 कंपेयर होगा 100 से. कितना लेस है? 9 लेस है. So you will subtract 9 from 91 only. So 91 minus 9 is 82. 9 का याद था, 9 का स्क्वायर इज 81. So your answer becomes 8281. ठीक है, yes, मैथ्री परफेक्ट. 92 का क्या करोगे? 92 is how much less? 8 less. तो 92 minus 8 करो तो ये कितना हो जाएगा? 92 minus 8 is 84. ठीक है, 8 का गैप था, 8 का स्क्वायर विल गिव यू 64. ठीक है, 93 is 7 less. So 93 minus 7 कितना हो जाएगा? 93 minus 7 will be 86. 7 का स्क्वायर is 49. Clear? 94. 94 is what? 94 is 6 less. 94 minus 6 करोगे 88. We just saw 6 का square is 36. Now can you tell me guys what is 95 square? चलो खुद से कैलकुलेट करके बताओ 95 स्क्वायर क्या आएगा? Everyone? Yes, beautiful. 95 is, just a second.
95 is 5 less, yes, स्मृति करेक्ट, 95 is 5 less, तो ये हो जाएगा 90, 5 का स्क्वायर इज 25. पिछले सीरीज में इफ यू चेक ना, योर नंबर्स वर इंक्रीजिंग बाय 1 1 1, 16 17 18 19 20 हो रहा था. यहाँ पे देखो 2 2 से बढ़ रहा है, 82 84 86 88 90. सो हियर आल्सो यू कैन ऑब्जर्व अ पैटर्न एंड यू कैन कीप दिस इन माइंड एज वेल इफ रिक्वायर्ड. 96 का क्या करोगे, इट इज 4 लेस, तो 96 माइनस 4 हो जाएगा 92, 4 का स्क्वायर इज 16. 97 is 3 less, so this will become 94, 3 का स्क्वायर इज 09. तुम 2 2 से बढ़ा सकते हो, so this will become 96, 2 का गैप है 04, 99, तो ये हो जाएगा 1 का गैप, तो ये हो जाएगा 98, 1 का स्क्वायर इज 01. तो ये सारे 4 डिजिट्स हो गए. 100 का स्क्वायर इज 10,000, so it's a 5 digit. चलो 101 का स्क्वायर कैसे करोगे, 101 is 1 more. You will add 1 to 101, so that will give you 102. अभी 2 spaces remaining. कितना गैप है 100 और 101 में, 1 का गैप है. 1 का स्क्वायर इज 1, I will write it as 01. ठीक है, देखो 10 हुआ, इधर 100 था, इधर 102 हो गया. Similarly 102 कितना ग्रेटर है 100 से, 2 ग्रेटर है. So you will add 2 to 102, that will give you 104. 2 ग्रेटर था, 2 का गैप था, 2 का स्क्वायर will give you 04. ठीक है, you will just be adding here. तो अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 106 obviously, 103 plus 3 106, 3 का स्क्वायर इज 09. 104 plus 4 हो जाएगा 108, 4 का स्क्वायर इज 16. 105 will give you 110, 5 का स्क्वायर इज 25. 106 is 112, 6 का स्क्वायर इज 36. 107 is 114, 7 का स्क्वायर इज 49. 108 will give you 116, 8 का स्क्वायर इज 64. 109 is 118, 8 9 square 81. 110 you can calculate, या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो, 11 का स्क्वायर होता है 121 and 00. ठीक है, so these are all your squares, right? Is this clear everyone? Let me know. Yes, okay, perfect, great. Now again, ये कौन से नंबर्स हमने किए, हमने 91 to 110 किया. What if your number is smaller than 91 और what if your number is greater than 110? तब क्या करोगे, वापस से इसमें कैरी आ जाएगा जो कैरी पहले था. Again you will solve that using your carry. How will you solve? देखो 86 का स्क्वायर चाहिए. 86 is less than 100. कितना लेस है, 14 लेस है. तो I will subtract 14 from my base which is my number itself. ठीक है, 86 minus 14 कितना होगा, 86 minus 14 हो जाएगा 72, 2 spaces remaining. ठीक है, डिफरेंस कितना था, डिफरेंस था 14 का. What is 14 square? 14 square is 196. So your answer will be 7396. ठीक है, 1 ऐड हो गया. Similarly let's calculate 79 square. 79 is less than 100. कितना लेस है, 21 लेस है. तो you will subtract 21 from 79 number itself. तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 58. ठीक है, 7 minus 2 is 5, 9 minus 1 is 8, 2 spaces remaining. 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर क्या होता है, 21 का स्क्वायर होता है 441. yes, very beautiful. So 58 plus 4 is 62, 41 as it is, right? Can you try 111 square and tell me the answer? Shall everybody try? Okay, Houston. Others? Smriti, Maitri? 111, that's correct. 111 में क्या करोगे, it is 11 more. So you will add 11 correct to 111. So that will give you 122. 2 spaces remaining. हर बार 2 ही spaces are remaining. Remember that. 11 का गैप था, so 11 square is 121. तो ये कैरी हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा. So your answer will be 1 2 3 2 1. ठीक है, let's calculate 119. 119 is 19 more, so you will add 19 to 119. 119 plus 19 is 138, 2 spaces remaining. 19 का गैप है, 19 का स्क्वायर इज
361. So what will you get? 138 plus 3. 138 plus 3 is 141 and 61 will be as it is. ठीक है, so your answer is 14641. ठीक है, तो अगर आपका नंबर 91 टू 110 की रेंज में नहीं है, सिर्फ आपका कैरी ऐड हो जाएगा. एक जगह पे आप नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक जगह पर आप नंबर ऐड कर रहे हैं, बट यू जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ द कैरी. इफ यू कैन कंसिडर द कैरी इन योर हेड, रिमेंबर यू कैन डू इट मेंटली ऑल्सो. आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, मेंटली भी ये सारे कैलकुलेशंस हो जाएंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, इज माय पॉइंट. एंड सिंस वी हैव लिमिटेड टाइम इन आवर एग्जाम, यू हैव 45 सेकेंड्स जिसमें आपको पूरा सम भी सॉल्व करना है. तो इमेजिन इफ यू कैन डू दिस इन द नेक्स्ट 5 to 10 सेकेंड्स और 15 सेकेंड्स, बचे हुए टाइम में आप अपना बाकी का क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, चलो लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल. अच्छा, सी दिस इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन. यहाँ पे क्यों दिया है? We will be doing compound interest, but the point here is, can you apply the method of squares in this case? Is the reason why we have put this question here. A person invested rupees 40,000 in a scheme offering compound interest at 8%. Find the amount he received after 2 years. तो एक बेसिक फॉर्मूला होता है अमाउंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट का, विच इज P 1 plus R by 100 raised to n. 40,000 is your principal, it is your money invested. ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अंदर आ जाएगा 8 by 100 raised to 2 years. तो अभी आप क्या करोगे? देखो, 40,000, can I write this as 1 plus 8 by 100 is 0.08. ठीक है, 8 by 100 is 0.08. So I write this as 40,000 into 1.08 the whole square. 1 plus 0.08 is 1.08. अभी हमने सीखा 108 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं. 108 का स्क्वायर कैसे निकालोगे? इट इज 8 more, so you will add 8 to 108, so that will give you 116 and 8 का स्क्वायर इज 64. तो मुझे स्क्वायर मिल गया 11664. अच्छा, इधर डेसिमल के बाद 2 नंबर है, उसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर में डेसिमल के बाद 4 नंबर्स होने चाहिए. तो आई विल पुट माय डेसिमल हियर, क्योंकि डेसिमल के बाद आई विल नीड 4 डिजिट्स. नाउ व्हाट इज द लॉजिक? These 4 zeros and these 4 decimal numbers वो एक दूसरे को cancel out कर लेंगे, so the decimal and zeros will cancel each other, so your value will only be 4 into 11664. We can calculate the value. 4 4s are 16, 6 4s are 24 plus 1 is 25, 6 4s are 24 plus 2 is 26, 4 1s are 4 plus 2 is 6, and this is 4. So your answer becomes 46656. So the idea here, what we are trying to say you is, ये जो कैलकुलेशन है ना, ये बहुत हेवी जाता है बच्चों को. बैठ के वो लोग 108 into 108 करते हैं, whereas you solved it in 5 to 10 seconds. So it saves ample of time, and a question which seems lengthy also becomes very very simple. ठीक है, so that is the perspective you need to develop कि भाई लेंदी नहीं है, मुश्किल नहीं है, मुझे बस राइट ट्रिक, राइट एग्जाम में राइट क्वेश्चन पे सॉल्व करते आना चाहिए, अप्लाई करते आना चाहिए. ठीक है, दैट इज द पर्पस. Yes. Now, moving on to cubes. Okay, 1 to 10, guys, please, you should know the cubes. ठीक है, जैसा I told you, 1 to 30 squares आने चाहिए, 1 to 10 cubes आनी चाहिए. अगर ये नहीं आएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा एग्जाम में. So make sure you do your 1 to 10 का cubes. ठीक है. Now, I hope you know what is a cube. Cube मतलब multiplying a number 3 times is a cube. So 2 into 2 into 2 will give you 8. 3 into 3 into 3 will give you 27. 4 into 4 into 4 will give you 64 and so on. ठीक है. Now, yes. Now, if you have a bigger number, 10 के ऊपर होगा, उसका क्यूब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? So basically, we are going to use this expansion, this algebraic expansion, which is a plus b the whole cube. इसका expansion I'm sure आपने सीखा होगा, which is a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. ये फॉर्मूला से हम हमारे नंबर्स का क्यूब निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? डोंट वरी, आई विल हेल्प यू आउट विद दिस एग्जांपल्स. चेक द एग्जांपल गिवन इज 32 क्यूब. आपको 32 का क्यूब निकालना है. द ट्रिक हियर इज, सी यू हैव 4 टर्म्स, आपको 4 टर्म्स लिखने हैं जैसे इधर लिखे हुए हैं. पहले क्या करोगे? फर्स्ट नंबर का क्यूब ले लो, 3 का क्यूब ले लो. 3 का क्यूब वी नो इज 27. लास्ट का नंबर लिख लो. लास्ट का नंबर इज 2 का क्यूब, b क्यूब, राइट? सो लास्ट का नंबर विल बी 2 क्यूब, विच इज 8.
मिडिल में आप क्या करोगे, यू हैव 3a² b। 3a² b मतलब दिस विल बी 3 इंटू a²। नाउ दिस इज, देखो a यहाँ पे क्या है, 3 है, और b यहाँ पे 2 है, राइट? दिस इज a, दिस इज b। सो 3 इंटू a² मतलब 3² इंटू 2। So that will give you 9, 3, 3 3s are 9, 3 is 27, ka double is 54. And the next part, this is this part which is 3ab²। 3ab square मतलब 3 into 3 into 2 square. So 3 3s are 9, 4s are 36, so this will give you 36. वही नंबर अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे लिखा है सेम नंबर्स। अब आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू मर्ज एंड टेल मी द आंसर। ऑब्वियसली इतना बड़ा आंसर नहीं आएगा मेरा, ठीक है? आई हैव टू मर्ज। हाउ डू आई मर्ज हियर? वेट, आई राइट इट डाउन अगेन, और आई जस्ट इरेज दिस बॉटम वाला पार्ट। यस, हाउ डू आई मर्ज देम? मर्ज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो लास्ट डिजिट है ये एज इट इज उठा लो, ठीक है? ये जो 6 है ये एज इट इज उठा लो। अब ये 3 जो है ये काइंड ऑफ कैरी हो जाएगा, वो अननेसेसरी है, वो कैरी होगा, तो वो क्या हो जाएगा, 3 और 4 आप ऐड कर लोगे, 3 + 4 हो जाएगा 7। तो दिस पार्ट इज डन, 3 + 4 ऐड करके आपने 7 लिख लिया। अब ये जो 5 है ये इधर 7 के साथ कैरी हो जाएगा। सो 5 + 7 is 12, so I'll write 2 here, right? 5 + 7 is 12, I'll write 2 here। ये जो 1 है वो इधर कैरी हो जाएगा, so 2 + 1 will give me 3, so that becomes my answer 32768। ठीक है? शुरू में हो सकता है थोड़ा सा हेवी लगे, बट वंस यू अंडरस्टैंड द पैटर्न इट इज वेरी इजी। ठीक है, लेट्स डू सम मोर एग्जांपल्स। लेट्स लुक एट 25 क्यूब। ठीक है, पे अटेंशन, इफ यू हैव एनी डाउट्स मेक श्योर यू आस्क। देखो 4 नंबर आएंगे, 4 ब्लैंक्स बना लो। पहले आएगा 2 का क्यूब, 2 का क्यूब इज 8। लास्ट में आएगा 5 का क्यूब, 5 का क्यूब इज 125। मिडिल में क्या चाहिए मुझे चाहिए 3a² b। 3a² b मतलब 3 into 2² into 5। 2² is 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60। इधर क्या आएगा, इधर आएगा 3ab²। सो 3ab²। 5² is 25, 25 का डबल 50, 50 3s are 150, right? 5² 25, 25 2s are is 50, 50 3s are 150। ठीक है, now how do we add these numbers? Be careful। 8 60, 8 second, okay, yes, 860, 150, yes Houston, correct, 125। now just pay attention, क्या करोगे, इधर से लास्ट डिजिट उठा लो, ये 5 आ गया। अब ये दोनों डिजिट्स मुझे नहीं चाहिए, तो ये मैं इधर ऐड कर लूंगी। so what will I get? I'll get 150 plus 12 which is 162। तो I'll pick 2 from here, 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, ये जो 16 है वो मैं इधर कैरी कर लूंगी। ठीक है, 60 plus 16, 60 plus 16 will give you what? 76। ये 6 इधर आ जाएगा। अंडरस्टैंड, यू जस्ट पिकिंग द यूनिट डिजिट। ओके, यस मैत्री करें, ये 7 उधर जाके ऐड हो जाएगा। so 8 plus 7 is 15, so your answer becomes 15625। ठीक है, is this clear to everyone? Right? So this is how you calculate your cubes. Let's take one more example. Let's take 46 ka cube. Then I would want you to try 73 on your own. Okay, just a second. हाँ, let's talk about 46. Okay, 46 का एक मिनट ना। Yes, great. 46 का क्या करोगे? Again write down your 4 digits. 6 cube is 216. 4 cube is 64. बीच में क्या करोगे? 3a² b, 3 into 4² into 6, 3a² b, 4² is what? 16, 16 6 are 96, 96 3s are 96 3s are is what? How much? 6 3s are 18, 9 3s are 27, plus 1 is 28. So this value will be 288. ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ 288, and this is 3ab², right? So 6² is 36, 36 into 4 is 144. तो 144 into 3 हो जाएगा, 4 3s are 12, 4 3s are 12 plus 1 13, and this will become 432. Now just add these numbers. You have 64, you have 288, you have 432, and you have 216. 6 आ जाएगा इधर, 21 इधर ऐड कर लो, 21 ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 453 हो जाएगा, बराबर। 3 इधर आ जाएगा,
45 उधर लेके चले जाओ तो दिस विल बिकम 45. So if you add 8 plus 5 is 13, 8 plus 4, 12 plus 1, 13, and this will become 333. This 3 will come down यहाँ पे, ये 33 इधर add हो जाएगा. So 64 plus 33 कितना हो जाएगा? So 4 plus 3 is 7, 6 plus 3 is 9, 97336 is your answer. ठीक है? Is this clear everyone? Can you try 73 and tell me your answer? Try 73, okay. Tell me your answer, क्या आता है? चलो, just try, then we'll discuss. Okay, Smriti, 389017. Perfect. Yeah, okay, let's do this. 7 का cube is 343. 3 का cube is 27. 3a square भी मतलब 3 into 7 square into 3. So basically 7 square is 49. 3 square is 9. तो 49 into 9 कर लोगे. मैं 3 correct. Beautiful. 9 9 is 81. 9 4 is 36. 36 plus 8. 36 plus 8 कितना हो जाएगा? 44. तो ये हो जाएगा 441. इधर क्या आएगा? 3ab square. So 3 into 7 into 3 square. Right? So 3 square is 9. 9 3s are 27 into 7. 7 7s are 49. 7 2s are 14 plus 4 is 189. Just add your digits. So you have 343, you have 441. Don't get scared looking at big numbers, huh? 7 आ जाएगा इधर, 2 उधर कैरी कर लो. 189 plus 2 is 191. 1 आ गया इधर. 19 जो है वो इधर ऐड हो जाएगा. 441 plus 19 कितना आएगा? 441 plus 19 will be 460. 0 आ गया इधर. 46 चला जाएगा इधर. So this will be 9, this will be 8, this will be 3. I'll copy paste it as it is. 389017. ठीक है? I hope this is clear. This is your cube trick. ठीक है? Now, moving on. We saw squares, we saw cubes. We need to understand अगर square root पूछा है of perfect squares तब क्या करोगे? ठीक है? ऐसे भी हो सकता है कि आपको कोई perfect square आ गया है और आपको square root find करना है, तब you shouldn't hesitate and figure out कि क्या कर सकते हैं, बैठ के multiply कर रहे हो, वो सब नहीं चलेगा. तो यहाँ पे just observe what table has been made. Last digit and last digit of square. So if your number ends with 1, the square ends with 1. Number ends with 2, square ends with 4. 3 का 9 हो जाता है, 4 का 16 हो जाता है, so it ends with 6 and so on. अब यहाँ पे ना एक बहुत यूनिक फीचर है, अगर आप देखोगे 5 ends with 5, ठीक है, उसके ऊपर 4 ends with 6, 6 ends with 6, तो इन दोनों का ना 6 6 हो रहा है. फिर 3 ends with 9, 7 ends with 9, so here also there is a pattern 9 9. 2 ends with 4, 8 ends with 4. Here also there is a pattern, if you can see. 1 ends with 1, 9 also ends with 1. ठीक है? So 5 के ऊपर there is a cycle being followed 6941. 5 के नीचे also there is a cycle being followed 6941. So this is a very beautiful feature of squares, which we will see how does it help us. ठीक है? Okay, square root यहाँ पे हम क्या figure out करेंगे? यहाँ पे आप उसको पहले तो break करो. लास्ट 2 डिजिट देखो, मतलब यहाँ पे यूनिट डिजिट देखो. यूनिट डिजिट क्या है? 4. ये परफेक्ट स्क्वायर है. यूनिट डिजिट 4 है. तो इफ माय यूनिट डिजिट इज 4, स्क्वायर रूट कैन एंड विद 2, और यूनिट डिजिट इज 4, तो स्क्वायर रूट कैन एंड विद 8. ठीक है? तो ये क्या होगा? 1 sec. Yes, okay, we'll check. So it will either end with a 2, एक मिनट, हाँ, और it can end with an 8. Now I have to figure out ये किससे एंड हो रहा है. अब आप क्या करोगे? 17 के आसपास जो भी परफेक्ट स्क्वायर्स है, 17 के पहले और 17 के बाद में आप दोनों लिखोगे. 17 के पहले का परफेक्ट स्क्वायर इज 16 और 17 के बाद में परफेक्ट स्क्वायर इज 25. ठीक है? 17 के पहले इज 16. अभी आप देखोगे दोनों में से 17 किससे क्लोजर है? दोनों में से 17 16 से क्लोजर है.
16 किसका स्क्वायर है? 16 4 का स्क्वायर है। पहली बात, वो 16 से क्लोजर है ना, तो आई विल पिक 2, आई विल नॉट पिक 8। अगर वो 25 से क्लोजर होता तो आई वुड हैव पिक्ड 8, बिकॉज वो 16 से क्लोजर है, आई विल पिक 2। एंड 16 का स्क्वायर रूट क्या है? 16 का स्क्वायर रूट इज 4, सो माय नंबर बिकम्स 42। ठीक है, माय नंबर बिकम्स 42। वील सॉल्व मोर एग्जांपल्स सो दैट यू अंडरस्टैंड इट बेटर। नाउ दिस एंड्स विद 9। ठीक है, दिस एंड्स विद 9, तो स्क्वायर रूट माइट एंड विद 3 और माइट माय स्क्वायर रूट विद एंड विद 7। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक सॉरी वन सेक, let me just erase this. Yes, so this will end with a 3 or it will end with a 7. ठीक है, now आप पहले ये देखो, 44 के पहले का परफेक्ट स्क्वायर, 44 के बाद का परफेक्ट स्क्वायर। 44 के पहले परफेक्ट स्क्वायर है 36, 44 के बाद का स्क्वायर है 49। 44 किससे ज्यादा क्लोज है? 36 से कि 49 से? 44 49 से ज्यादा क्लोज है, मतलब माय नंबर विल एंड विद अ 7 नॉट विद अ 3। नाउ जो भी स्मॉलर परफेक्ट स्क्वायर है, स्मॉलर परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 36, उसका स्क्वायर रूट ले लो। उसका स्क्वायर रूट क्या है? 6 है, सो माय फर्स्ट डिजिट विल बी 6। सो 67 का स्क्वायर इज 4489। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, दिस इज 67, राइट? सॉरी माय, नहीं 67, हाँ 67 करेक्ट है, सॉरी 67 इज करेक्ट, दैट इज, दैट शुड बी योर आंसर। मैत्री 42 नहीं आएगा, 67 आएगा। ठीक है, चलो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वाला देखते हैं। यहाँ पे 3 डिजिट्स है, हम क्या करेंगे, उसको ब्रेक करो। ठीक है, 6 से एंड कब होता है? जब 4 से एंड होता है, तो फिर या फिर 6 से। सो इट कुड एंड विद अ 4, इट कुड एंड विद अ 6। 129 से क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर्स कौन से हैं? कैन यू टेल मी? 129 से क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर्स इज 121 व्हिच इज 11 स्क्वायर, या फिर 144 व्हिच इज 12 स्क्वायर। यस यस यस। सो व्हाट विल यू चेक नाउ? 129, कैन आई क्लियरली से 121 से क्लोजर है? 121 से क्लोजर है मतलब आई विल टेक 4, आई विल नॉट टेक 6। एंड 121 किसका स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर है, सो माय फर्स्ट टू डिजिट्स विल बी 11। मतलब ये जो नंबर है ये 114 का स्क्वायर है। ठीक है, इज दिस क्लियर? ओके, लेट्स कैलकुलेट 2209। 09 है, 9 मतलब 3 है, या फिर 7 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 22 के पीछे का परफेक्ट स्क्वायर, 22 के आगे का परफेक्ट स्क्वायर, वो जाएगा 16 एंड 25। अभी क्लियरली 22 इज क्लोजर टू 25। ठीक है, तो मतलब क्या होगा? आई विल पिक 7, आई विल नॉट पिक 16, आई विल नॉट पिक 3, रादर आई विल पिक 7। एक और चीज क्या है, छोटा नंबर था 16, 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा? 47 हो जाएगा। सो माय नंबर इज 4747। ठीक है, यस। कैन यू ट्राई द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस? 5776 ट्राई करो, 8464 ट्राई करो। चलो और मुझे बताओ क्या आएगा। ओके, मैत्री बढ़िया। 76 92। ओके लेट्स सी। ओके ओके, 6 से एंड हो रहा है। 6 से एंड कब होता है? वेर एंड्स विद 4 और एंड्स विद 6। ठीक है, सो 6 से एंड हो रहा है मतलब क्या हो जाएगा? 4 या फिर 6 आएगा। 57, 57 के पीछे और बाद में क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या आएगा? एक 7 स्क्वायर आएगा 49, एक हो जाएगा 8 स्क्वायर विच इज 64। ये किससे ज्यादा क्लोजर है? या ये किससे ज्यादा क्लोजर है? ये 64 से ज्यादा क्लोजर है, राइट? सो 64 एंड 57 आर वे मोर क्लोजर, मतलब माय नंबर हैज टू एंड विद अ 6। और 7 छोटा नंबर था, 49 था छोटा नंबर, 49 किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है, सो माय नंबर बिकम्स 76। ठीक है, बढ़िया। 76 is correct. Next one, 92. Yes, that is also correct. 8464. Beautiful. चलो, just a sec. Yeah, let's try these questions also. 6724. Yeah, इसका 92 था. If you have a doubt, just let me know. I will explain it to you. Just break it down. It's very simple. 4 है मतलब 2 है, 4 है मतलब 8 है, तो ये हो जाएगा 2 या फिर ये हो जाएगा 8। 67 के दो नंबर्स कौन से हैं जो उसके पीछे और उसके आगे आएगा? यू हैव 1 second. You have 8 square 64 and you have 9 square 81. It is very close to 64, मतलब it should end with a
2 only because it is close to 64. 64 किसका स्क्वायर है? 64 8 का स्क्वायर है, so my number becomes 82. ठीक है, my number becomes 82. Let's talk about this one. 69 9 से एंड हो रहा है, मतलब 3 है या फिर 7 है, तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल ईदर बी 3 और दिस विल बी 7. ठीक है, अभी 187 से क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर्स कौन से हैं? 187 can I say one is 196 14 square and one is 169 which is 13 square. So it is either 13 square or it is either 14 square. Okay. Now 169 187 or 187 196, obviously it is very close to 196, right? So I'm going to pick 7. 169 किसका स्क्वायर था? 13 का स्क्वायर था, तो you will write it as 137. तो 137 is your answer. ठीक है, चलो ट्राई द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस. नीचे वाले क्वेश्चंस ट्राई करो. 7921 कैलकुलेट करो. टेल मी व्हाट यू गेट. ओके मैत्री, दैट्स करेक्ट. चलो अदर्स आल्सो प्लीज ट्राई. Yes, Smriti, correct. It is 89. 7921 is 89 का स्क्वायर. That's beautiful. Let's look at 43681. थोड़ा बड़ा नंबर है, डोंट गेट स्केर्ड. 81 है, ठीक है. 1 से एंड हो रहा है. 1 से एंड हो रहा है मतलब एंडिंग विद 1 या फिर एंडिंग विद 9. तो या तो 1 से एंड होगा या तो 9 से एंड होगा. ठीक है. 436 से क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 436 से द टू क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर्स आर, एक तो आएगा 441 बराबर है जो इससे बड़ा है और 21 का स्क्वायर है. एक तो आएगा 400 विच इज 20 का स्क्वायर. क्लियरली इट इज वेरी क्लोज टू 441. 5 का ही डिफरेंस है, तो आई एम गोइंग टू पिक 9. स्मॉलर नंबर था 400. 400 किसका स्क्वायर है? 20 का स्क्वायर है, सो योर नंबर बिकम्स 209. ठीक है, योर नंबर बिकम्स 209. यस, बढ़िया. नाउ कैन यू ट्राई द नेक्स्ट टू? 6889 and 34596. चलो ट्राई करो. चलो 6889 is very easy. Okay, Houston, what about others? 89 देख लो. It ends with a 9. Ends with a 9 मतलब it has to end with a 3 or with a 7. 68 से closest perfect squares कौन से हैं? एक तो है 8 square 64, एक तो है 9 square 81. Clearly it is very close to 64. So I will pick 3. And 64 किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है. So my number becomes 83. Right? Now let's look at the next number. It ends with a 6. 6 मतलब क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा या फिर 6 हो जाएगा? 4 और 6 में से एक आंसर आएगा. 345 से क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर्स कौन से हैं? 345 तो एक तो आएगा 18 स्क्वायर विच इज 324. एक तो आएगा 19 स्क्वायर विच इज 361. ठीक है, अब दोनों में से इफ यू चेक ये किससे ज्यादा क्लोजर है? 345 361 इज 16 का गैप. 24 and 45 is how much? 22 का गैप. So obviously it is very close to 361. So 6 से एंड होगा. स्मॉलर नंबर था 324. 324 किसका स्क्वायर है? 18 का स्क्वायर है. So my number becomes 186. ठीक है, the answer is 186. हाँ Smriti, 83 was correct. So even if you see 5-digit numbers, the idea is don't get scared. It's very easy to just break it down and figure it out. खाली ये सब चीजें याद रखना, ये टेक्निक्स याद रखना, ये भूल मत जाना. ठीक है. So this was square root. What if they ask you cube root? Cube root में क्या करेंगे? Okay. First thing again, last digit and the cubes end with what? You have to figure that out. मतलब 1 का cube ends with 1. 2 का cube is 8, ends with 8. 3 का cube is 27, ends with a 7. 4 का cube is 64, ends with a 4. तो ये एटलीस्ट ये चीजें आपको याद होनी चाहिए. ठीक है, ये याद होना चाहिए. नाउ
दे आर सेइंग क्यूब रूट्स। तो अभी प्रीवियस केस में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग लास्ट टू डिजिट्स क्लब कर रहे थे, हम उसको ब्रेक कर रहे थे और बाकी का नंबर कंसिडर कर रहे थे, ठीक है, बिकॉज स्क्वायर रूट चाहिए था। यहाँ पे क्यूब रूट है तो हम लास्ट थ्री डिजिट्स सेपरेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक बढ़िया चीज क्या है, यहाँ पे कोई भी नंबर इफ यू चेक ना रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप क्यूब्स देखोगे 1 8 7 4 5 6 3 2 9 0, ऑल 0 to 9 ऑल द नंबर्स आर कंसिडर और कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो इट इज वेरी इजी टू फिगर आउट क्यूब रूट्स। अभी कैसे करोगे, माई क्यूब एंड्स विद 9, क्यूब एंड्स विद 9 सो नंबर शुड आल्सो एंड विद 9, तो मेरा लास्ट डिजिट तो 9 आएगा, ठीक है। अब 59 से क्लोजेस्ट परफेक्ट क्यूब कौन सा है, जो उससे छोटा है, उससे बड़ा नहीं ले सकते, फिर वो नंबर बड़ा हो जाएगा। 59, see, 1 cube is 1, 2 cube is 8, 3 cube is 27, 4 cube is 64. 4 cube is 64, वो 59 से बड़ा हो गया, तो I will take 3 cube. 3 cube is 27. So I will take this digit which is 3. That means ये नंबर 39 का क्यूब है, ठीक है। I hope you understood this, ठीक है, 39 हो जाएगा। Let's take one more example. Let's take the next one. एक मिनट, हाँ, दिस इज मच इजियर, यस मैत्री, यस, डोंट वरी, वो वाला भी इजी था, इट वाज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट यस, बिकॉज यहाँ पे नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, आपको दो स्टेप नहीं करना पड़ रहा है, आपको एक ही स्टेप करना पड़ रहा है। यस, सो इफ यू लुक एट दिस 823, 3 से एंड हो रहा है, मतलब नंबर हो जाएगा 7, ठीक है। 103 किसका क्लोजेस्ट है परफेक्ट क्यूब से, 5 क्यूब इज 125, 4 क्यूब इज 64, सो आई विल टेक 4, दिस बिकम्स 47, राइट। 112 किसका 2 से एंड होता है, इट शुड एंड विद 8, ठीक है। 195 से क्लोजेस्ट परफेक्ट क्यूब कौन सा है, 5 क्यूब इज 125, 6 क्यूब इज 216, वो बड़ा हो जाएगा, सो आई विल टेक 5, सो दिस गिव्स यू 58, राइट। कैन यू ट्राई द नेक्स्ट टू क्वेश्चंस? ओके स्मृति, ऑल राइट, ट्राई द नेक्स्ट टू क्वेश्चंस। 85184 and 132651. Okay. ठीक है, बोथ आर करेक्ट। ओके, लेट्स ब्रेक दिस डाउन। 4 से एंड हो रहा है, 4 से एंड हो रहा है मतलब 4 ही होगा। 85 से क्लोजेस्ट इज 4 ओनली, सो दैट विल गिव यू 44। यहाँ पे 651 1 से एंड हो रहा है, मतलब 1 ही होगा। 132 से क्लोजेस्ट परफेक्ट क्यूब कौन सा है, तो 5 है, 5 क्यूब इज 125, सो दैट्स 51, ब्यूटीफुल, ठीक है। लेट्स लुक एट दिस 432, 2 से एंड हो रहा है, 2 से एंड हो रहा है मतलब 8 आ जाएगा। 314 से क्लोजेस्ट परफेक्ट क्यूब कौन सा है, सी 7 क्यूब इज 343, जो बड़ा है, so 6 cube is 216, so this number will be 68, समझा। 5 का 5 ही आएगा। 614 क्या आएगा, 8 क्यूब इज 512, 9 क्यूब इज 729, तो ये 8 क्यूब हम ले लेंगे 512, so this number becomes 85, ठीक है। इज दिस क्लियर? यस। Try the last three questions and tell me your answers, then we'll discuss. चलो ट्राई करो ये। क्विकली ट्राई। ओके मैत्री, बढ़िया, ओके, सुपर, ब्यूटिफुल, ओके। अदर्स, लेट्स सी, 4 5 6 5 3 3, ठीक है, ब्रेक इट डाउन, एंड्स विद 3, एंड्स विद 3 मतलब 7 आएगा। 456 से क्लोजेस्ट परफेक्ट क्यूब क्या आएगा, 7 क्यूब इज 343, 8 क्यूब इज 512, तो ये 7 से क्लोजेस्ट है, तो ये हो जाएगा 77, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ब्रेक इट डाउन, 1 मतलब 1 ही आएगा। 753, 753 किससे क्लोजेस्ट है, देखो 9 क्यूब इज 729, 10 क्यूब हो जाएगा 1000, so I will take 9, so my number becomes 91. चलो, now try the next question. Houston, बढ़िया, yes, 328, 8 से एंड हो रहा है मतलब 2 से एंड होगा। 238, 238 से क्लोजेस्ट परफेक्ट क्यूब कौन सा है,
6 cube is 216, 7 cube बड़ा हो जाएगा, so 216 है, तो this will become 62. So this is perfect cube. ठीक है, so these techniques are applicable if your numbers are perfect squares and perfect cubes. So make sure you revise पहले तो जो भी ये टेक्निक्स की हैं ये याद रखो और ये अप्लाई करना शुरू करो. अगर अप्लाई नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगा. ठीक है, आगे इफ यू आर नॉट एबल टू अप्लाई इट इन द क्वेश्चंस व्हिच वी आर गोइंग टू डू, देन एग्जाम में याद नहीं आएंगी ये ट्रिक्स. ठीक है, सो मेक श्योर यू स्टार्ट अप्लाइंग. सेकेंडली, लाइक वी डिस्कस्ड, 1 to 30 स्क्वायर्स प्लीज कर लो, 1 to 20 एटलीस्ट टेबल्स कर लो, एंड 1 to 10 क्यूब्स तो भी कर लो. ठीक है, वंस यू नो दैट, applying your square trick, square root trick, cube trick and cube root trick becomes extremely easy. ठीक है, so any doubts anyone in any of the questions? किसी को कोई डाउट है आज के सेशन में? Anybody, any doubts, any queries? No, one second. Any class, any doubt? Quickly, let's do a quick revision. Can you tell me what is 49 square? Okay, tell me what is 49 square. अगर टेक्निक याद है तो बताओ. क्या बात है स्मृति, बढ़िया. 49 is 1 less, so you will subtract 1 from your base, which is 25. 25 minus 1 is 24. 1 का square will be 01. So your answer becomes 2401. Can you tell me what is 53 square? What is 53 square? Superb. Yes. 53 is 3 more. So you will add 3 to 25. 25 plus 3, yes, correct. 25 plus 3 is 28. 3 ka square is 09. 2809. Beautiful. Can you tell me what is 92 square? square. Smriti, yes. Houston, no. 92 square. 92 कितना लेस है 9 से? 92 8 लेस है 9 से, तो 64, your answer becomes 8464. ठीक है, I hope you are able to recall. Can you mentally calculate and tell me what is 112 square? I want 112 square. Mentally calculate करके बता सकते हो. 112 square. Maitri, beautiful. Yes, Smriti, correct. 112, हाँ करेक्ट. 11 नहीं, 12544 आएगा. देखो 112 कितना ग्रेटर है? 112 12 ग्रेटर है. So you will add 12 to 112, which is 124. 2 spaces remaining. 12 का स्क्वायर था 144. So your answer will be 12544. ठीक है, so please do not forget this. And the next class, I will be asking you some of the squares and cubes. So please make sure you revise it and come. ठीक है, and if you have any doubts and queries, you can let me know in the next class. ठीक है, चलो, thank you guys. Yeah, bye bye.